Hello everyone, welcome to this session. This is Sanchali Pratap and you are here on iExamB. Embrace the iExamB learning experience and you are going to prepare 50% faster with us. And in this journey of preparing faster, I would also like to first of all highlight that already so many students have registered their selections with the help of iExamB, and that's what we are celebrating here. So I would also like to request you all to have more insights about it, and आप सीधा हमारी website पे भी जा सकते हैं in order to understand what are the course offerings in terms of these exams. और सीधा अगर लेकर चलें आपको आज के सेशन के ऊपर, सो लेट मी वंस अगेन री इन्फोर्स द आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग दिस सीरीज. आई होप आप लोगों ने पहला सेशन ज़रूर देखा होगा. इफ़ नॉट, आई वुड सजेस्ट यू टू गो अहेड एंड look at that session. These sessions are meant to invoke that sense of you can say the urgency of RC's questions in our exam, not only in phase 1 but in phase 2 as well. So we are building these techniques over a period of time ताकि हमारा phase 1 and phase preparation can go hand in hand with each other. So the agenda behind this session is to understand the different kind of questions and also build the different skills which we are going to have in order to cater the needs. आज की session में I have brought a very यू कैन से टॉपिक जिसके ऊपर आपको शायद ऐसे के फॉर्डर में भी जो है ना ये हेल्प करेगा. सो दिस टॉपिक विल सीम वेरी वेरी क्लोज टू the things which is happening right now in surrounding us. Okay, so again the similar type we are going to do here everybody. First I would like to pause on every slide for around 10 seconds. आप इस स्क्रीन को यहाँ पर पॉज कीजिए, पहले पढ़िए and then you will solve the question और फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे. सो हियर इज द फर्स्ट स्लाइड. सेकेंड स्लाइड. थर्ड एंड द लास्ट स्लाइड. So I hope by this time you people were able to read the entire passage. Okay, feel free to pause whenever you like guys. ठीक है, आप चाहें तो उसे रिवाइंड कर सकते हैं, फिर से पढ़ सकते हैं. Let me show you the first question. Question number 2. Question number 3. Question number 4, or I guess 5 if I have fumbled up with the number. So we have 1, we have 2, we have 3, and we have 4. Okay, so the number was fumbled itself. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अभी हम लोग साथ में पढ़ना है everybody. Okay, so just try to see that whether we all are on the same page or not. Okay, in terms of this understanding. So once you have done with the reading part of this first para, you would have realized कि यहाँ पे हमने रूरल इकोनॉमी की बात की है, राइट. इंडिया के रूरल इकोनॉमी जो है वो वापस कैसे ट्रैक पर आ रही है, एंड मेनली क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर अदर टू फैक्टर्स ऑल्सो हाईलाइटेड, दैट इज मॉनसून एंड क्रॉप्स का रेट, राइट. इस वजह से इवन इन विलेजेस ऑल्सो द इनकम हैज़ इंक्रीज्ड. इवन FMCG प्रोडक्ट्स भी जो है वो लोग यूज़ कर रहे हैं. ट्रैक्टर्स और 2 व्हीलर्स को ख़रीदने के लिए भी लोगों की भीड़ हो गई है. मतलब ओवरऑल इनका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है इंडस्ट्री पर. नाउ बिकॉज ऑफ दैट द कॉन्फिडेंस ऑल्सो सीम्स हाई, एंड अगर वेदर ख़राब हुआ तो थोड़ा रिस्क भी बन सकता है. सो बोथ द थिंग्स हैव बीन हाईलाइटेड हियर करेक्टली. अगर हम चलते हैं अगले पैराग्राफ के ऊपर, सो दिस इज़ अबाउट अगेन रूरल इकोनॉमी, कि कैसे रूरल इकोनॉमी का जो आउटलुक है ना वो फ़िलहाल तो पॉजिटिव है, लेकिन मॉनसून, क्योंकि ये वैगरीज है मॉनसून का, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि इसका रिवाइवल जो है वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, राइट. खरीफ क्रॉप को स्पेशली यहाँ पे फोकस किया गया है, दैट इसकी जो सोविंग होती है वो जनरली जून एंड जुलाई के टाइम पे होती है, राइट. और फार्मिंग के अलावा भी रूरल इकोनॉमी में कई सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं. ओके,
So that was all about our first part. मतलब basically it was all about the introduction that how India's rural economy is doing currently. Now if we see the second slide, it was all about filled of so many data, है ना. तो ये डेटा है किस बात का? ट्रैक्टर हो गए या टू व्हीलर की सेल्स हो गई जो रूरल रिकवरी को एक्चुअली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है ना. और अगर हम स्पेशली बात करें 2025 की फिनेंशियल ईयर को, तो यहाँ पे ट्रैक्टर की सेल्स बढ़ी है, ठीक है, कैसे आपके अलग अलग जो है ना टू व्हीलर्स की सेल बढ़ी है. सो सिर्फ बड़े किसान ही नहीं स्टूडेंट्स, इवन स्मॉल फार्मर्स आर ऑल्सो एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द मेकेनाइजेशन. क्योंकि हर बार जो है ना हम ऑक्स में या फिर एनिमल्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या जो उनका मेंटेनेंस है ना दैट इज़ एक्चुअली क्वाइट हाई. तो इस वजह से ये जो शिफ्ट है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर का, वो 5% ग्रोथ पॉसिबल लग रहा है इस साल, जो इंडिया के 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने वाली जो जर्नी है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और ये क्यों कह सकते हैं आपकी ज़रूरी भी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ ऑल अबाउट कि कैसे हमें इसे सस्टेन रखना है. तो रिफॉर्म्स भी लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सेक्टर आधी वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ अ क्वाइट हाई GDP परसेंटेज, इजंट इट. तो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए हमको अपना R&D जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसके अलावा बारिश पर डिपेंड ना रहें, इसलिए इरिगेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करना होगा. मतलब ऑल इन ऑल स्टूडेंट्स वी कैन से कि हम जितने ज़्यादा क्लाइमेटिक अनसर्टिनिटी को जो है ना प्रिवेंट कर सकें उतना हमारे लिए बेहतर होगा. और इन चैलेंजेस को टैकल करके ही हम रूरल इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन जो है ना वो बना सकते हैं, राइट. और अगर मैं एक और सवाल आपसे यहाँ पे पूछूँ दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टोन ऑफ दिस पैसेज, तो टोन जो है ना वो आप देखो तो 3 तरह के टोन एक्चुअली प्रिवेलेंट थे इस पैसेज में. आवर ऑथर स्टार्टेड विद द ऑप्टिमिज्म इन हिज राइटिंग, इजंट इट, कि कैसे वो रूरल जो रिकवरी है ना वो हो रहा है. देन हमें थोड़ा सा कॉशन भी किया हमारे ऑथर ने रिगार्डिंग दी प्रोग्रेस या जो क्लाइमेट अनसर्टनिटीज़ बनी हुई होती हैं उनको लेकर. एंड फिर से लास्ट पार्ट में उन्होंने हमें उम्मीद दी है कि कैसे हम इस चीज़ का वे फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो अगेन इट इज़ गोइंग इन अ बिट पॉजिटिव टोन, है ना. तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑथर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल है इस टॉपिक को लेकर, एवरीबडी. सो आई होप द पैसेज अंडरस्टैंडिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, द पैसेज सजेस्ट दैट द ग्रोथ इन इंडियाज रूरल इकोनॉमी इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय व्हाट. तो भाई जाहिर सी बात है कैसे हमने फार्म इनकम या इंडस्ट्रियल डिमांड के बीच का जो है ना इनडायरेक्ट लिंक हमें बताया गया है. सो लेट्स रीड द ऑप्शंस क्लियरली. गवर्नमेंट सब्सिडीज डायरेक्टली इंक्रीजिंग फार्मर्स डिस्पोजेबल इनकम, नो. A structural shift from agriculture to manufacturing, looking very vague option. Higher farm incomes due to favorable monsoons and strong crop prices, yes, these two factors were there. Indirectly boosting demand for consumer goods, exactly, this was acting as a positive thing. Then urban consumers shifting their spending toward rural produced FMCGs, no. Declining rural wages forcing farmers to diversify into non-agricultural ventures, this was also not strongly hinted upon. So we are choosing option number C to be our answer. Let's try question number 2, very important one. ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जहाँ हमें इम्प्लीकेशन बनाना हो रहा होता है. ऑथर ने एक सेंटेंस लिखा, while all agriculture is rural, rural is not wholly agricultural. Very deep line, right? So the tricky part is actually distinguishing. क्या distinguish करने में है कि कौन किसका सबसेट है. तो guys, agriculture is actually a subset of what? Rural economy, है ना. तो चलिए हम देखते हैं ये वाली पॉइंट हमारी कहाँ वैलिड हो रही है. Urban areas are beginning to dominate agriculture production, no. Rural economic growth is now entirely dependent on government schemes, nowhere hinted upon. एग्रीकल्चरल GDP इज डिक्लाइनिंग, इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें. मॉनसून्स नो लॉन्गर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट रूरल लिवलीहुड्स, अगेन नो नीड टू रीड इट फर्दर. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद वन ऑप्शन, वन उम्मीद, और वो क्या है, E. तो रूरल इकोनॉमी जो है वो नॉन फार्म सेक्टर्स को भी इंक्लूड करती हैं, बट एग्रीकल्चर रिमेन्स देयर कोर. तो ये हमारा सबसेट तो है, एग्रीकल्चर एक पार्ट तो ज़रूर है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग. उसके अलावा भी उसके कुछ को पार्ट्स हैं, आप ऐसे कह सकते हैं.
Let's try the third question. What is the most significant risk to the rural growth trajectory described in the passage? I think passage और हमने भी डिस्कशन में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बात की कि इट इज़ ऑल अबाउट मॉनसून वैगरीज इजंट इट. तो ये ऑप्शन हम कहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारा पॉइंट है वो किस चीज़ पर था. एग्जैक्टली, यू आर थिंकिंग राइट. एडवर्स वेदर डिसरप्टिंग मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर. सो दिस वाज द वीकनेस, और आप इसको रिस्क के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो. देखो, एक बार अगर पैसेज हमने अच्छे से पढ़ लिया ना स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड टू रेफर द पैसेज अगेन एंड अगेन. दिस इज ऑल्सो एन आइडिया बिहाइंड डूइंग दिस क्वेश्चन टुगेदर. चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, द ऑथर would most likely agree with which statement about agricultural reforms? Everybody, I would like to emphasize on this part once again. Most likely का मतलब हो सकता है there might be more than one correct option, but you have to focus on that part which is more broader or more highlighted in terms of our passage content. So पहला point बोलता है, reducing irrigation investment is viable since monsoons are becoming more predictable. भाई अभी अभी तो हमने इसको रिस्क बताया. So how can that be a correct one? Prioritizing R&D and irrigation is critical to mitigate climate risk. हाँ जी, ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है हमारा. Small farmers should abandon mechanization. बिल्कुल भी गलत है, opposite to the what we read. Rural growth can be achieved without addressing monsoon dependence. No, this will create havoc. बिल्कुल भी नहीं. Urbanization will naturally resolve agricultural challenges. Nothing has been commented upon. So let's chase our right answer, and that is exactly option number B. Okay, so I hope these 4 question gave you an idea कि बिना पैसेज को बार बार रेफर किए हुए भी हम क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट गाइज एंड गर्ल्स, आई वुड लाइक टू गिव यू, और यू कैन से असाइन यू 2 homework, and I want the answer of these 2 questions in the comment section. Feel free to provide your right answer, and along with that you can also support your answer with the proper reasoning. Everybody, last but not the least, the cream of our cake, और वो है हमारा vocabulary, क्योंकि vocabulary के बिना तो editorial हमारा अधूरा है, passage हमारा अधूरा है. So everybody, let's have a quick glance at the important words from this article. So the very first word was uptick. Uptick contains the sense of up and something which involves improvement. So there was an uptick in sales after new product launch. Next word comes as robust. इसका synonym आपने कई बार सुना होगा, strong, something which is very very powerful. So despite economic slowdown, the company reported robust profits. मतलब काफ़ी अच्छा profit हुआ. Stalled, something which stopped progressing, बिल्कुल रुक गया. कैविए इज़ अ काइंड ऑफ अ वार्निंग. जैसे कि अगर आपके आसपास भारी बारिश हो रही है, लाइक एक्सेसिव रेनफॉल इज़ देयर, सो आप देखते हो ना कई बार हमारे फ़ोन में एक वार्निंग मैसेज आता है. सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कैविए. वाइब्रेंसी इज़ अ वर्ड कमिंग फ्रॉम द वर्ड वाइब्रेंट, एंड वाइब्रेंट इज समथिंग विच इज़ फुल ऑफ लाइफ और एनर्जी. Imperative, something which is extremely urgent or essential, we can't do it away with. हमें ये करना पड़ेगा. जैसे कि इट इज़ इम्पेरेटिव टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज नाउ, मतलब ये अभी की इस समय की डिमांड है. वैगरीज, जो मैंने कई बार अपने इस पैसेज को पढ़ने के दौरान इस्तेमाल किया. वैगरीज ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर बहुत सारा फ्लक्चुएशन इन्वॉल्व रहता है. जैसे कि फार्मर स्ट्रगल विथ वैगरीज ऑफ मानसून रेन्स. इवन ट्रेड मार्केट में आप देखते हो, है ना, स्टॉक मार्केट में, सॉरी, दैट यू सी, कभी आज जो है ना स्टॉक्स घट गए, कल बढ़ गए. So that's what we call as vagary or a fluctuation. And the last word is entail. Entail is used as a verb, everybody. ऐसी कोई चीज़ जो अपने साथ necessary part रखता हो. Like the job entails frequent travel, मतलब job के अंदर travel है. That means as a part of a job you can do frequent travel. So that's all, everyone. That was the part which we wanted to discuss today. Feel free to drop your queries along with the answers to those questions which I just gave you as homework. On the same line, I would also like to highlight that there is a special session, or you can say workshop, organized by Sushil sir
ऑन आवर प्लेटफॉर्म। आपको इसके लिए अगर रजिस्ट्रेशन करनी है तो लिंक हमने इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड की हुई है। गाइस, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी एनलाइटनिंग वर्कशॉप गोइंग टू बी, जहाँ पे हम करियर पाथ की बात करेंगे यूपीएससी और एसबीआई क्लर्क एस्पिरेंट्स के लिए। फील फ्री टू गो अहेड एंड रजिस्टर योरसेल्फ एज इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप टू अटेंड। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एवरीबडी। Let's meet again in the next session. Bye bye. Take care.